Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, कैसे हो? बढ़िया. ओके, आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर को एक कदम आगे लेकर जा रहे हैं विथ वन मोर एडिशनल प्रॉब्लम. अगेन इट कैन बी एन इलस्ट्रेशन जो ऑलरेडी सॉल्व है, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ एज अ टीचर, या एन अनसॉल्व प्रॉब्लम जहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन दोनों देकर कोशिश ये करता हूँ कि आपकी मदद हो सके. अगर आप हमारे नए मित्र हो, नए जुड़े हो, तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और अगर पुराने हो तो इस लेक्चर को भी अपने दोस्तों के साथ में साझा शेयर ज़रूर करना. आज का प्रॉब्लम पीछे है, क्या कहता है? वासु एंड विराज, ये दो पार्टनर्स हैं, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. इसको हम ओल्ड रेशियो कहते हैं. उनका बैलेंस शीट है, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, बिल्डिंग. ओके, नथिंग स्पेशल, नॉर्मल बैलेंस शीट. दे एडमिट हरी, तो नया पार्टनर इज हरी. ही shall have to bring 60,000 as his capital for 1/4 share. This is almost like our previous sum. So the moment आपको पता चल जाता है कि जो नया पार्टनर है उसका रेशो कितना है, तो आप न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो ढूंढ के रख लो. थोड़ा काम हमारा कम हो जाएगा, थोड़ा हमारा टाइम ज़्यादा बच जाएगा. सो मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया है बिकॉज इट इज़ द सेम एज व्हाट वी हैव डन previously, but yes, whenever the PDF is released, this will be available as a part of this particular solution. Next, second point, very important, because goodwill is handled in a different manner. अगर आपके घर में डॉगी हो, कुछ लोग उसको अपने घर का सदस्य कहेंगे, fair enough, good, but उसके साथ में आप ट्रीटमेंट कैसे करते हो? हाउ डू यू बिहेव with that animal? Do you consider it just to be an animal? Do you consider it to be an extension of your family? आपके परिवार का एक सदस्य. तो ट्रीटमेंट अलग अलग होता है. उसी तरह यहाँ पे डॉगी तो नहीं है, बट यहाँ पे गुडविल है. ये गुडविल का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है. कभी कभी ओल्ड पार्टनर्स नए को बोलते हैं गुडविल लेकर आ, चल लेकर आ, वो लेकर आता है. और कभी कभी वो असमर्थ होता है, वो गुडविल ला नहीं सकता, बोलता है अरे नहीं, पैसे ही नहीं मेरे पास, क्या लेके आऊँ मैं. इन दैट सिचुएशन जब नया पार्टनर गुडविल रोकड़े में नहीं ला सकता, गुडविल को रेस किया जाता है, रेस. ओके, अभी ये गुडविल रेस का चक्कर क्या है? लेट मी रीड दिस. वैल्यू ऑफ द फर्म
goodwill of the firm is to be fixed at average profit of the last 3 years. तो वो ऐसा बता रहे, देखो भाई आपको ना गुडविल ढूंढना पड़ेगा. गुडविल का लेंथ ब्रेथ मेजरमेंट नहीं होता, तो गुडविल इज फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट. जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है उसका मार्केट में रेपुटेशन भी ज़्यादा रहेगा. सिंपल सी बात है, बराबर. अगर कोई फिल्म एक्टर के पिछले 5 पिक्चर्स हिट थे तो उसका नाम तो काफ़ी ऊपर है, तो उसके 6th पिक्चर का फीस भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पक्का है कि भाई उसका गुडविल है मार्केट में. हाँ, तो यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट की मदद से गुडविल ढूंढेंगे. एंड द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3, पिछला 3 साल, 48,000, 81,000, 73,500. एवरेज प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है, विद द हेल्प ऑफ दैट गुडविल आ जाएगा. क्या कहा देखो, हरी, ये नया पार्टनर, इज अनएबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश. हरी बोलता है देखो मैं कैपिटल तो लेके आ गया बट मैं गुडविल नहीं ला सकता. तो क्या किया गया है, इट वॉज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये गुडविल रेज्ड क्या होता है, गुडविल को बढ़ाया, बनाया, पकाया, पैदा किया. तो गुडविल रेज्ड का एक डेबिट एक क्रेडिट होता है, विच ऑब्वियसली सारी चीज़ों का होता है. तो टुडे यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये गुडविल रेज करते हैं तो किधर डेबिट करते हैं, किधर क्रेडिट करते हैं. शांति समझाता हूँ. पॉइंट नंबर 3, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट. ये तो RDD हुआ, क्रिएटेड एट 1500 हो जाएगा. पॉइंट नंबर 4, क्लोजिंग स्टॉक का कीमत 22,500 कर देंगे जी, प्लस होगा माइनस होगा. पॉइंट नंबर 5, प्लांट एंड बिल्डिंग, नॉट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट अलग बिल्डिंग अलग, इज टू बी डेप्रीशिएटेड बाई 5%. तो मैं डिसलाइक नहीं बोल रहा, ओके, कम करो, वैल्यू कम कर देंगे. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, मतलब रिवैल्यूएशन का पार्टनर्स का अकाउंट और बैलेंस शीट. जर्नल नहीं है, चलो भाई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, थोड़ा टेंशन कम है. स्टेप 1 क्या है, ये पूरा बैलेंस शीट खाली करो. तो करते हैं ना जी, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर. सबसे पहले क्या दिया गया है, सन्ड्री क्रेडिटर, तो थोड़ा ऊपर मैंने लिख लिया. फिर ठीक मेरे पीछे जनरल रिजर्व विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, विच इज टोटल 30,000 बट 18 और 20,000. और फिर कैपिटल बैलेंस 1,08,000, 72,000. दिस इज द लाइबिलिटी साइड. देन यू मूव ऑन टू द एसेट साइड. सबसे पहले बैंक दिया था 750 जो मेरे ऊपर आया है. देन डेटर्स और उसके नीचे RDD आप लिख लेना. स्टॉक 25,500. इन्वेस्टमेंट में देर इज नो चेंजेस, सो आउटर कॉलम. प्लांट 90,000, बिल्डिंग 36, उसमें कुछ डेप्रीसिएशन करना है. एंड देन कम्स द फर्स्ट एडजस्टमेंट जो मैं पहले दिखा देता हूँ आपको प्रीवियस पेज पे. ही शैल हैव टू ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल. सो जस्ट टू रिमाइंड यू कि जब कैपिटल लेकर आते हैं तो वो इस तरह होता है. आज के प्रॉब्लम में गुडविल इस तरह नहीं है, ओके. तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ. पहले कैपिटल का, तो चलो भाई बैंक अकाउंट में जाओ, टू हरी कैपिटल, और ठीक मेरे पीछे बाय आएगा, बाय बैंक 60,000. चलो आ गया. What about goodwill? They said, see the Hari, not the Hari, he cannot bring goodwill. He doesn't has money. Then you have to raise. How do you raise goodwill? First you find goodwill. How to find goodwill? Find average profit of last 3 years. अब ये क्या नया बवाल है, देख गुडविल दिखता नहीं है ना, छुआ नहीं जा सकता, उसकी लंबाई नापी नहीं जा सकती है. So you have to find out average profit. How do you find average profit? Well, total profit of the last 3 years. Because they said last 3. Sometimes they say last 5. So then I will do it for last 5. So average profit formula is total profit upon number of years, and total profit is 2,02,500 upon 3. When you do the division and you get the correct answer, you get 67,500. ये है एवरेज. एवरेज का मतलब नॉट मोर नॉट लेस, इन बिटवीन, नॉट मोर नॉट लेस, इन बिटवीन. दे सेड यू फाइंड दैट, और वही बन जाएगा गुडविल. गुडविल इज
Last 3 years average profit 67,500. Sometimes they say 2 years purchase, 4 years purchase. Then you have to multiply. Okay, years purchase का मतलब है multiplication. But यहाँ पे बोला no. Just find out last 3 years average. कर दिया, that is goodwill. Now what to do with this? In your solution, you don't see goodwill. Where is it? अरे है ही नहीं, पैदा कर, रेस कर. जैसे बच्चे पैदा होने के बाद उनको रेस किया जाता है ना, वैसे. अच्छा, डेबिट कहाँ पे करूँ? देख, एसेट है तो एसेट साइड पे लिखना पड़ेगा. सुपर, एसेट साइड पे लिख लिया 67,500. ये डेबिट हो गया. तो क्रेडिट किधर करने का? ये किसका गुडविल है? पार्टनर्स का. कौन से पार्टनर्स का? तीनों का? नहीं, ये पुराने पार्टनर्स का गुडविल है. नया पार्टनर तो अभी आया, उसका गुडविल किधर से? उसको तो लाना चाहिए था, वो नहीं लेकर आया. दिस गुडविल इज फ्रॉम द पास्ट प्रॉफिट. पास्ट के प्रॉफिट के लिए पसीना किसने बहाया? वासु एंड विराज. देयरफॉर ऊपर जो डेबिट हुआ है उसका क्रेडिट उनके अकाउंट में बाय गुडविल रेज्ड, उनके पुराने रेशियो में, विच इज 3:2. 4,500, 27,000. दिस इज हाउ यू हैंडल गुडविल रेज्ड. सर, गुडविल रेज करने से क्या हुआ? जो पुराने पार्टनर्स थे वासु और विराज, उनको गुडविल मिल गया. देखो ना, उनको क्रेडिट किया गया. जब भी किसी को क्रेडिट दिया जाता है मतलब उनकी तारीफ हो रही है, उनका फायदा हो रहा है. अगर मैं स्टेज पे जाता हूँ, कभी अगर मेरे को कोई गेस्ट बुलाता है, मैं स्टेज पे जाता हूँ और कोई मुझे पूछे, स्टीवन सर आप अकाउंट्स अच्छा पढ़ा लेते हो, आपको किसने पढ़ाया? तो मैं मेरे सर का नाम लूँगा. मतलब मैं मेरे सर को क्रेडिट दे रहा हूँ कि ये मेरे सर थे, उन्होंने मुझे, उनका हाथ मेरे सर पे था 20 सालों तक, तो मैंने अकाउंट्स ढंग का समझ लिया. तब जाके मैं अभी ऑनलाइन के माध्यम से और बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ. तो ये होता है क्रेडिट देना. आपने मेहनत की, आपका नाम मैं ले रहा हूँ. वैसे ही गुडविल की मेहनत, इनको क्रेडिट मिल गई. ये गुडविल रेज्ड डन हो गया. ओके, तो ये एक अलग तरीका है गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को देने का. ओके, देन पॉइंट नंबर 3, that is just behind me. I'll move out. Reserve for doubtful debt is created at 1,500. So see, it is not debt 0. Now if I write 1,500, the outer answer is 65,250, but in the bracket it was 0. Now it is added by 1,500, which means RDD plus, liability plus. Therefore it comes on the debit side, 1,500. Next, closing stocks new value is 22,500. See, the old value is 25, so it means it has gone down. डिक्रीज आप बोल सकते हो 3,000 का. एसेट माइनस, वो भी डेबिट में आएगा. टू स्टॉक 3,000. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्लांट को और बिल्डिंग को दोनों को 5% डिसलाइक. डिसलाइक नहीं बोलना चाहिए, कम कर दो. प्लीज नोट, गुडविल यहाँ पे मैंने नहीं बनाया बिकॉज देयर वाज नो नीड फॉर द गुडविल अकाउंट. आपने सर मैंने तो बना दिया, तो चलेगा ना, आप खाली रखो, और क्या कर सकते हैं. ओके, आने वाले लेक्चर्स में फॉर्मेट में थोड़ा चेंज होने वाला है, तो तभी मुझे कोसना मत. अभी जो ज़रूरत होगी, जैसा देश वैसा भेस कहते हैं ना, तो वो हिसाब से मैं कर लूँगा. अब प्लांट को 5% कम किया तो 4,500 आउटर कॉलम में आंसर. और उसका सेकेंड इफेक्ट इज एसेट माइनस. डेप्रीसिएशन को भी हमने बिल्डिंग का 5% किया, 1,800 आंसर इन द आउटर कॉलम. एंड द सेकेंड इफेक्ट टू बिल्डिंग 1,800. क्रेडिट में कुछ है नहीं अभी तक, अब तक तो कुछ नहीं है. सो दिस इज रूटीन, ये नॉर्मल है ना, काफ़ी बार किया है. अब लास्ट में ऐसा बनाओ, वैसा बनाओ, वैसा बनाओ, तो हमने सब बना लिया. तो जी टैली कर लेते हैं. सबसे पहले क्या, बैंक अकाउंट को बंद कर लो, उसके अंदर जो बैलेंस आया वो आप एसेट साइड पे ट्रांसफ़र कर लो. कर लिया जी, 6750. गो टू दी रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट का टोटल कर लो और उसको ओल्ड पार्टनर्स में, बिकॉज नाउ यू गेट अ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, distributed to the old partners and in the old ratio, not sacrifice, old ratio.
3/5 2/5 6480 4320 एंड द सेकेंड इफेक्ट इज ऑन द डेबिट साइड क्योंकि वहां पे था बाय, यहाँ पे आया 2। ये आपका कैलकुलेशन के स्पीड पे डिपेंड करता है। ये मैंने अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया उससे कोई मतलब नहीं है, ओके क्योंकि ये पूरा मैथमेटिक्स है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में हाउ गुड आर यू, आपकी प्रैक्टिस कितनी तगड़ी है उसके हिसाब से ये डिसाइड हो जाएगा। अब तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो एक एक करके हम क्लोज करेंगे। वासु का क्रेडिट हैवी है तो डेबिट में डिफरेंस इज 1,60,000 20 रुपया। विराज का क्रेडिट हैवी है, डेबिट में डिफरेंस इज 1,06,680। हरी का कुछ नहीं जी, कुछ नहीं मतलब क्रेडिट ही हैवी है, वो अभी तक प्योर कैपिटल है। ओके ये जो शुद्ध कैपिटल होता है ना, ये मैं अगेन एंड अगेन हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई चूरन नहीं है। ओके ये आगे जाके काम आएगा ना, इसके लिए मैं आपके कानों को वो आदत डाल रहा हूँ। ये बैलेंस है, ये ऊपर मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। आगे आ जी। So one by one I write the name of all the partners and the total of the capital is transferred in the outer column and then थोड़ी मेहनत थोड़ी दुआ और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। 3,71,700। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझा और गुडविल रेज जो थोड़ा अलग था वो भी आपको समझ आया। अभी के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद क्योंकि आपने आपका कीमती समय ये चैनल पे स्पेंड किया। तो अभी के लिए टाटा करने का टाइम आ गया। अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।